Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel M for Mathematicians. So as all of you know that we have started the series Complex Analysis by Dennis Chisel and Patrick Tishanhan. So we have discussing inequalities, and I have told you about the triangle inequality, and we have derived a reverse triangle inequality. So basically now in we have solved till or try to understand till equation 10. So now we are going to our equation 11. So right in this equation they have just generalized the basically inequality, which is triangle inequality given in 6, equation 6. They have just generalized it. So look, this is inequality 6, in which we have just two values right there, n is equal to 1 and 2. Now they have generalized up to n values. So yes, we can say that absolute value of sum is sum of absolute value. Basically right there, absolute value of sum is less than equal to sum of absolute values. So this is absolute value and this is sum z1 z2 up to zn. This is less than equal to sum of absolute values. This is basically sum, and we have separately the absolute values. So they are saying that inequalities 6, 8 and 10 will be important when we work with integral in chapter 5 and 6. So when we are going to discuss chapter 5 and 6, so we have inequality 6, then inequality 8, which is obviously what it is, reverse triangle inequality. This is triangle inequality, and 6, 8 is reverse triangle inequality, and 11 is basically generalized form of triangle inequality. Okay, now we are going to discuss example 3, an upper bound. So now find an upper bound for for absolute value of -1 divided by z की power 4, then 3z square plus 2 if absolute value of z is equal to 2. Now it is absolute value of z or modulus of z. As we know, z is equal to x plus iota y. It is a complex number. So now in this example they are basically asking to find the upper bound. When we are talking about upper bound, so students, upper bound is basically, we can say that it is the highest positive value, if we can say that ceiling value. So when we are talking about this मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, अब अगर हम बात करते हैं अपर बाउंड की, तो वो ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे बड़ी होती है. अब कोई वैल्यू इसके इक्वल तो हो सकती है, बट इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे छोटी होती है. सो अपर बाउंड इज द कॉन्सेप्ट लाइक दैट. तो हम कह रहे हैं कि हमने इस एब्सल्यूट वैल्यू के लिए एक अपर बाउंड ऐसा फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो z मोड है या एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ z है ये 2 हो. तो अब हम लोग इसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली रिजल्ट है एक, because we have this absolute value of quotient. So we know that absolute value of quotient is equal to quotient of absolute value from result 3, from second result in 3. So we have discussed previously about it. So look, this is 3 and this is second result. This is saying that absolute value of quotient is quotient of absolute values. So अब अगर हमारे पास ऐसे एब्सल्यूट वैल्यू है, इसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं. सो वी आर यूटिलाइजिंग दिस रिजल्ट हेयर. According to this result, we have just separated these. We have just separated like a mode of 1 or absolute value of 1 divided by absolute value of z की power 4 plus 3z square plus 2. Now they are saying that we have one positive, maximum positive number we have to find for this. Okay, so we let that this maximum positive number or upper bound is m. We have just let this or suppose this that we want to find a positive real number m or upper bound such that we have this condition. Obviously हमारे पास ये जो नंबर होगा m,
ये सबसे बड़ा नंबर होगा, बाकी सारे नंबर्स जो इस फ्रैक्शन के हैं, इस क्वोशंट के हैं, वो क्या होंगे, इस नंबर से छोटे होंगे या इसके इक्वल होंगे। यही डेफिनेशन मैंने अभी आपको अपर बाउंड की बताई है। अब हमें अगर इसकी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, m चाहिए, और m जो है वो सबसे बड़ा नंबर हो, या अब अगर कोई नंबर हो भी तो वो इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो, बड़ा ना हो। तो अब अगर हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ये चाहेंगे कि हमारे पास ये जो ओवरऑल फ्रैक्शन है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बेसिकली हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये हमें सबसे बड़ी वैल्यू कब देगा, जब कोई भी फ्रैक्शन हमें तभी सबसे बड़ी वैल्यू देता है अपनी, जब उसका जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल छोटा कर दिया जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर उसको डिवाइड कर देता है और उसकी वैल्यू को, उसके न्यूमिनेटर की वैल्यू को कम कर देता है। तो अब अगर हम, मेरे पास अगर एक वैल्यू है 10, अगर मैं इसको लिखूँ 1/10 तो वो क्या होगी, 0.1। सो यहाँ पर 1 छोटा था एंड 10 बड़ा था। अब अगर मैं यही इसका डिनोमिनेटर 10 की जगह 2 कर दूँ, 1/2, तो ये क्या हो जाएगी, 0.5। तो यहाँ पर बेसिकली देखें, जब मेरे पास न्यूमिनेटर जो था वो छोटा था, 2 था, तो मेरे पास जो वैल्यू आई ओवरऑल फ्रैक्शन की वो 0.5 आई, जबकि जब मेरे पास डिनोमिनेटर 10 था तो वैल्यू आई बेसिकली 1/10, 0.1। तो इतना डिफरेंस हो जाता है। इस वजह से हमें जब ये ओवरऑल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो उस टाइम पे हम क्या इंश्योर करेंगे कि ये डिनोमिनेटर जो है इसकी वैल्यू हम बिल्कुल मिनिमम कर दें, बहुत छोटी कर दें, ताकि ओवरऑल जो हमारे पास न्यूमिनेटर और इस फ्रैक्शन की वैल्यू आए वो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी हो। तो हम न्यूमिनेटर की वैल्यू मेक श्योर करेंगे कि सबसे छोटी पॉसिबल न्यूमिनेटर की वैल्यू हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस न्यूमिनेटर को सॉरी डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हम ब्रेक कर लेंगे। अब इसको हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो आप देखें ये है z⁴ प्लस 3z² प्लस 2। तो अब हमारे पास बेसिकली z⁴ प्लस 3z² प्लस 2 है। अब अगर हम एक सब्सटीट्यूशन मेथड देखें, जिसमें हम जो है बेसिकली एक इसको किसी भी x के या किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी वेरिएबल के इक्वल लिख लेते हैं। तो हम इसको बाय सब्सटीट्यूशन मेथड करते हैं कि हम इसको z² को x के इक्वल सपोज करते हैं, और अगर हम इसको z² को x के इक्वल सपोज करें तो फिर हमारे पास x² क्या होगा, z⁴। चले हम इसको कॉपी पे और रजिस्टर पे ट्राई करके देखते हैं, ताकि इट वुड बी मोर क्लैरिफाइड टू यू। अब देखें यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। अब मैंने ये बता दिया कि ये लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, सीलिंग और मैक्सिमम लिमिट होती है, और ये इक्वल होती है उस नंबर के, बट ये स्मॉलर इक्वल भी हो सकती है, ये स्मॉलर भी हो सकती है, बट बड़ी नहीं हो सकती। उसके बाद देखें, मेरा गोल था कि मैंने बॉटम का साइज़ जो है डिनोमिनेटर का साइज़ कम रखना है। अब मैंने ये रिज़ल्ट अप्लाई करके इनको सेपरेट किया, और मुझे पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 1। एंड उसके बाद मैंने कह दिया कि मुझे एक मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है जो कि m है, और उसकी वैल्यू या तो फिर हमारे पास इक्वल होगी m के, या फिर m से छोटी होगी, कभी भी m से बड़ी नहीं होगी, तभी तो वो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट अपर बाउंड। ओके, सो हम अपना इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए इस डिनोमिनेटर को मिनिमाइज़ कर देंगे, छोटा करेंगे, इसलिए हमने उसको ब्रेक कर दिया। तो अब बेसिकली हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करें। हमने यहाँ पर x इज़ इक्वल टू z² इज़ इक्वल टू x सब्सटीट्यूट किया, जिसका मतलब है अगर हम दोनों तरफ स्केयर लें तो ये हो जाएगा x² इज़ इक्वल टू z⁴। सो यहाँ पर हम z⁴ और z² की जगह x और x² को सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। देखें x² प्लस 3x प्लस 2। अब हम इसको फर्दर जो है वो बाय फैक्टराइजेशन, सो हमारे पास 2 1 2 है, तो अगर हम ऐसे करें तो हमारे पास क्या आता है जी, ऐसा एक नंबर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाए, एंड अगर ऐड करें तो ये दो, तो वो दो नंबर हैं 2 और 1। तो 2 1 2, 2 + 1 3, एंड 2 into 1 is 2. So we are taking common x from here, and from here we just take 1 common. So this is like
एक्स, अब यहाँ से हम x+2 कॉमन लेते हैं तो पीछे x+1 बच जाएगा। अब अगेन हमारे पास, हम इनको ब्रेक कर चुके हैं तो हम इसको अगेन रिप्लेस कर देते हैं x इज़ इक्वल टू z² से। तो हमारे पास आ गया z² + 1 एंड z² + 2। अब यहाँ देखें हमारे पास यही जो 3 था, इसका हमारे पास पार्ट रिज़ल्ट 1 है जो कि कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, कि हम एक दफ़ा तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं प्रोडक्ट की, वो है प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल, यानी हम z1 z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू को z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू और इनटू z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हैं। तो यही रिज़ल्ट हम दोबारा यूज़ करते हैं यहाँ पे। पहले हमने क्वोशंट का रिज़ल्ट यूज़ किया था, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द रिज़ल्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो देखें हमने ये जो टर्म्स ब्रेक की z1, अब आपको पता है कि ये हम ऊपर जो है हमारे पास ये मॉड्यूलस में लिखा हुआ था, बॉटम जो है डिनोमिनेटर जो है वो मॉड्यूलस में लिखा था, तो हमने पहले तो इन दोनों चीज़ों को मॉड्यूलस में लिख लिया। अब हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू बाय रिज़ल्ट 1 ऑफ 3। तो हमने ये अप्लाई करके इनका मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट को सेपरेट कर लिया। यहाँ देखें मैंने इन दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सेपरेटली लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रायंगल, जो रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो ये है, वो हमारे पास कहती है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनका सम हमेशा बड़ा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2, सो एंड ओवरऑल एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हमेशा इस तरह छोटा ही होगा। अब देखें आप यहाँ पर ये प्लस है, सम है दो बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, एक आपके पास है z² आपको पता है zx प्लस अयोटा y के इक्वल होता है, एंड 1 जो है इसमें इमेजनरी पार्ट जो है वो 0 है आपका, 1 + 0 अयोटा, एंड अगेन ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो आपने क्या किया, इस पर यही रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी होगी, यहाँ देखें ग्रेटर देन, ये चीज़ बड़ी होगी किससे, पहले नंबर की एब्सोल्यूट ओवरऑल एब्सोल्यूट वैल्यू से, और उसमें पहले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, देन सब्ट्रैक्शन में दूसरे नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, एंड अब यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है तो ये प्रोडक्ट तो अप्लाई होगा दूसरे, एंड देन दूसरे पे भी यही। अब देखें पहले नंबर था पहला था z², तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z², देन प्लस था यहाँ पर, बट यहाँ जो है वो क्या है, माइनस हो रहा है, जाहिर है यहाँ पे प्लस था दरमियान में बट ये तो माइनस है, तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, देन आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज हो गई यहाँ से, बिकॉज एक के लिए अप्लाई करें अब दूसरे पे भी यही रिज़ल्ट अप्लाई करते हैं, तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ z² एंड -2 मॉड्यूलस ऑफ 2, एंड वी हैव क्लोज दिस मोड। सो अब हमने ये अप्लाई कर ली, हमारे पास रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई होगी, एंड वी हैव जस्ट मैंशनड दिस एज इक्वेशन 1। नाउ उन्होंने हमें बताया था कि अगर z मोड जो है और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2 होती है, उस केस में आपने जो है बेसिकली गिवन फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और अपर बाउंड बताना है। यहाँ देखें जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है वो 2 होती है, उस केस में हमने इस फ्रैक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन उसका अपर बाउंड बताना है। तो इस वजह से हम क्या पुट करेंगे, मोड ऑफ z और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू। तो अब देखें हमने यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पर माइनस मोड ऑफ 2 आ रहा था, अब मोड ऑफ 2 यहाँ आ रहा था हमारे पास। अब हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट, ओके। और ये जो मोड ऑफ z है, यहाँ पर हमने मोड ऑफ z की जगह 2 पुट किया, तो ये मोड ऑफ z² की जगह 2² -1, हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1, देन z² की जगह 2 की पावर 2, देन हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2, मोड ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2, तो वो लिख लिया। अब हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 -1, देन 2 का स्क्वायर 4 -2, सो दिस इज़ 3
एंड दिस इज़ 2। नाउ हमें पता है कि मोड ऑफ 3 जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 वो 3 के इक्वल ही होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 2 के इक्वल ही होती है। तो 3 इंटू 2 6। तो हमारे पास अब जो है z⁴ प्लस 3z² प्लस 2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। सो ये जो है, ये मिनिमम इसकी सबसे छोटी वैल्यू तब होगी, इसकी सबसे छोटी वैल्यू कहलाती है 6। इसको हमने मिनिमाइज़ किया, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 6। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन था उसका डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमाइज़ हो गया, वो अपनी सबसे छोटी वैल्यू पे है, जिसका मतलब है कि 1 वो जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू पे है, इस पॉइंट 6 पे। तो अब हम कर लेते हैं, हम इसको न्यूमिनेटर में कर देते हैं, हम लिखते हैं 1/एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z⁴ प्लस 3z² प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6। नाउ दिस 1/6 इज बेसिकली m, वो कह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू। अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ओवरऑल, ये सबसे मैक्सिमम किस पे है, 1/6 वैल्यू पे। यहाँ देखें, हमने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमने इक्वल टू कर दिया। अब लेकिन हमारे पास ये इसका रिलेशन क्या था, यहाँ पर ये जो सम था वो उससे बड़ा था, यानी कि ये हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास ये सम था एंड यस, ये हमारे पास सम था जिसको हमने वेयर इट गो, ओके, सो हाँ, तो ये हमारे पास सम था, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब हम इस इनक्वालिटी को यहाँ से स्किप करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ ओवरऑल इसको देखते हैं और लास्ट वन को देखते हैं। ये है हमारे पास z⁴, एब्सोल्यूट वैल्यू z⁴ प्लस 3z² प्लस 2 एंड ये हमारे पास ये है। अब ये जो चीज़ है इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 6 आया। अब ये ग्रेटर देन है इससे, ये जो है z⁴ प्लस 3z² प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, यहाँ आ गया 6। तो हमने ये चीज़ लिखी सबसे पहले, तो देखें मैंने ये चीज़ लिख ली कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है। अब अगर ये न्यूमिनेटर में जाता है, मैंने 1 लिख ली बिकॉज मुझे फाइंड तो यही करना था, तो इक्वालिटी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, सॉरी इनइक्वालिटी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी वैल्यू इस ओवरऑल को बहुत छोटा कर देगी, जिसकी वजह से ये नंबर जो है यहाँ पर इससे बड़ा हो गया 1/6 से, और सॉरी ये वाला इस 1/6 जो है इस एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा हो गया। तो अब इसी चीज़ को देखें, ये इक्वेशन को देखें एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, एंड इस इक्वेशन को देखें, सेम ही नहीं है, लेस देन इक्वल टू वहाँ 1/6 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इन दो इक्वेशन से हमने इनको कंपेयर किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, m जो है वो 1/6 आ गया। तो अपर बाउंड जो है वो क्या है, m/6, सॉरी, तो हमारे पास वही इक्वेशन है बट यहाँ पर वहाँ m था और यहाँ पे 1/6 है, तो अपर बाउंड क्या आ गया, 1/6। आई हैव जस्ट से m/6 बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर हमारे पास पीछे जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमने अजम्पशन ली थी कि ये फ्रैक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू m है, और m जो है वो कोई भी अपर बाउंड और पॉजिटिव रियल वैल्यू है। अब हमें पता चल गया कि ये जो m है ये क्या है, 1/6 है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इस फ्रैक्शन की वो 1/6 पे होगी। ये 1/6 मैक्सिमम वैल्यू है, इससे जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं या तो वो इससे छोटी हैं या फिर वो इसके इक्वल है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। एंड 6 वो पॉइंट है, तो 6 वो पॉइंट है जिस पे जो ये इसका डिनोमिनेटर है, बॉटम वैल्यू है इसकी, डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो मिनिमम है, ओके, 6 तो ऑब्वियसली न्यूमिनेटर की वैल्यू उसी पॉइंट पे सबसे बड़ी होगी जो कि 1/6 है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्पल 3 of finding an upper bound if absolute value of z is equal to 2 and according to the fraction we have find the upper bound of that fraction. In next lecture we'll solve exercise 2.1 inshallah. Okay, take good care of yourself and feel free to ask any of the question. Allah Hafiz.